So, here we all today to hold hands in making every little differences we can together. Let us stand together and make our world a wonderful place, not only for us, but for our future generation as well. Starting with the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent, who is omnipotent and omnipresent. Honorable Chief Guest, Education Reformist, Mr. Sonam Wangchuk sir, respected guest of honor, Mr. Sajjad Hussain, all dignitaries, dear students from different institutions, audience, Julay, Assalamu alaikum, and very good afternoon to you all. I, Fatma Nisa, an active member of Student Educational Movement of Kargil. As we know that we all are here to attend a seminar organized by Student Educational Movement of Kargil in collaboration of Himalayan Institute of Alternative Ladakh to talk about the rising environmental issues of UT Ladakh. So without wasting our precious time, I would like to invite the Vice President of SMOG Ladakh, Mr. Ahmad Qadri, please come here for welcome speech. Honorable Chief Guest of the day, Mr. Sonam Wangchuk, Director of Health, Guest of Honor, Mr. Sajjad Hussain, Assistant Professor, UDC Kargil, a special guest, dear students who come from different schools, ladies and gentlemen, very warm afternoon. Assalamu alaikum, Julay. I, Vice President Ahmad Qadri, on behalf of SMOG Ladakh, would like to welcome you all to this program that has been organized to discuss and create awareness about environmental issues among the public, especially reference to Ladakh. It's my pleasure to address you all on the behalf of SMOG. I welcome you, all the participants in this program. We are truly blessed with your preference, especially our guest, Mr. Sonam Wangchuk, who was honored so many awards nationally and internationally for this extra efforts in the field of environment and education. I also welcome to Mr. Sajjad, guest of honor. I once again welcome you all in this program. I am ensured that you all will feel enriched with knowledge after the complete of this event. Now I would like to invite Professor Sajjad Hussain. Please come here and express your golden wave among all of us. Salam, Julay, good afternoon to all of you. It's really an honor for me to speak before the audience, respected audience, I must say. And valuable, important person for all of us. Sir, please come here and express your golden words among all of us. या जुले संगमाला सलाम कारगिल के नौजवान बच्चे को, सलाम कारगिल के मुस्तकबिल को। आप सभी को मैं दिल की गहराई से सलाम अर्ज़ करता हूँ, आदाब अर्ज़ करता हूँ। और यहाँ जो आए दीगर शख्सियत हैं उन सब का खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों ने वक्त निकाला, मौका फराहम किया। पहले मैं ये बता दूं मैं क्यों आया कारगिल, क्योंकि बहुत लोग सोच में हैं, कयासारियाँ भी हैं। तो मैं दरअसल हर साल आता हूँ तकरीबन इसी वक्त कारगिल में, कोविड के
वक्फे को छोड़ के, वो मैं एक छोटा सा गांव है कारित, वहाँ आता हूँ क्योंकि वहाँ कुछ बहुत ही कमाल के माहौलियात से, तालीम से जुड़े काम लोग सर झुकाकर बिना किसी शोर के, बिना किसी शोहरत के कर रहे हैं। मगर अभी वो शोहरत भी हासिल कर रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी सालों से अपने गांव में एक तो तालीम में बहुत मेहनत कर रहे हैं और वैसे ही माहौलियात से वो पहले गांव में से थे जिन्होंने आइस स्तूपा, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए। और शोहरत इसलिए कह रहा हूँ कि उनके काम को पहचानते हुए हमारे मरकज़ी जो सरकार है उन्होंने काफ़ी इनामात से नवाजा है उन्हें। तो नेशनल उन्हें दिया गया था, उनके स्कूल को, उनके गांव को ये आर्टिफिशियल्स बनाने, ग्लेशियर्स बनाने के लिए कोई 3 साल पहले नेशनल अवार्ड मिला है उनके टीचर को। एक बार नहीं 2 बार। वो स्कूल देखने लायक है, आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, वो गांव देखने लायक है। तो मैं हर साल आता हूँ वहाँ लोगों के साथ मिल के प्लांटेशंस, जैसा बता रहे थे सज्जाद साहब, दरख्त लगाना एक स्वाब का काम है। आज के इस बदलते माहौल में स्वाब और गुनाह की बात करें तो दरख्त लगाना, ऑक्सीजन बढ़ाना स्वाब है, और आलूदगी फैलाना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाना वो गुनाह है। तो ये बहुत ही स्वाब का काम कर रहे हैं इस गांव में। तो मैं आता रहता हूँ, इस साल भी इसीलिए आया क्योंकि वो सर्दियों में अपने बच्चों के मुस्तकबिल बढ़ाने के लिए विंटर कोचिंग्स चलाते हैं। जैसे बता रहे थे आपको 1 साल का तरक्की चाहिए तो खेती कीजिए, और 10 साल का या उस तरह के वक्फे का चाहिए तो दरख्त लगाइए। तो वो दरख्त लगा रहे हैं। तकरीबन 5000 दरख्त हमने मिल के लगाए पिछले कई सालों में करीब के गाँव के साथ। क्योंकि मैं जब भी हवाई जहाज़ से चलता हूँ, हालांकि मैं माहौलियात पे बात करता हूँ, मगर बात करने के लिए भी, मिलने के लिए भी हवाई जहाज़, तैयारों से जाना पड़ता है और उससे आलूदगी फैलती है। वो मैं रोक नहीं सकता क्योंकि संदेश पहुंचाना, आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। तो कम से कम इतना कर सकता हूं कि जितना गलत हुआ उसके बराबर या उससे ज़्यादा अच्छा कुछ करें। तो कारित वो गांव है और भी कई गांव हैं कारगिल में जिनके साथ हम मिल के हज़ारों दरख्त उगाते हैं ताकि उनका वो ऑक्सीजन पूरे दुनिया के लिए स्वाब बने, और जो थोड़ी बहुत आलूदगी मेरे चलने से होता है उससे बढ़कर फ़ायदा हो माहौल को। तो ये बस मंजर है, वो पिघल रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो हाईवे तो न्यूयॉर्क के वजह से नहीं है, लंदन के वजह से नहीं है, ये हाईवे तो हमारे लिए है, हमारी ही वजह से है। इस पे जो गाड़ियां चलती हैं, ट्रकें चलती हैं, जो हमारे लिए मवाज़े लाते हैं, जिसकी हमें आधे की ज़रूरत होती है, आधे की ज़रूरत भी नहीं होती है, 2 महीने इस्तेमाल करके कचरा फैला देते हैं। उनको लाने में जो ट्रकें डीजल का धुआं फैलाते हुए आते हैं, उनके धुएं के वजह से ये ग्लेशियर्स पिघल के जा रहे हैं। यहाँ पर पानी की बहुत जल्द कमी होगी अगर अभी ठीक भी हो तो। जो टैक्सीज हम टूरिज्म के कमाई के नाम पे चलाते हैं, और वो भी डीजल टैक्सीज जिसमें से बहुत आलूदगी फैलती है, धुआं निकलता है, उसके वजह से ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो इन सब से, चाहे वो द्रास के ग्लेशियर्स हो या कारगिल के नदे नाले और ये जो शुरू का आपका दरिया है, उसकी हालत अगर देखें, हर तरफ कचरा है, डब्बे हैं, बोतल हैं, क्या क्या हमने फैला रखा है, क्या हमने बना रखा है इस खूबसूरत वादी का, जिसे कुदरत ने हमें इतना खूबसूरत नवाजा था, मगर हमने, इंसान ने उसका क्या हालत बनाया। उसको महफूज रखने के लिए हम किस मोदी सरकार से मांगेंगे क्या, जो हमने ये फैलाया है, या क्या हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मांगेंगे महफूज करने को? किससे मांगेंगे आप बताइए? ये खामोशी बहुत बोलता है। क्योंकि
हम भी उतने ही शरीक हैं इस जवाल में। जिस तरह से हमारे नदी नालों से लेके खेत खलियान तक, गली कूचों तक और तक जो बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें हम मकामी लोगों का भी उतना ही हाथ है। उससे भी हमें इलेक्शन हो बचाना, उस वक्त आप लोग बहुत ही चौकन्ना हो, क्योंकि वहीं से शुरू होता है सब गलतियां और गड़बड़ियां। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका दिया है भारत माता ने हमें कि हम अपना रहनुमा खुद चुने, हम अपना राजा खुद चुने। कोई शख्स आके हम पे राज नहीं करता। हमारे चुने हुए शख्स हमारे इंतजामिया को चलाते हैं, हमारे स्कूलों को, हमारे दफ्तरों को, हर एक चीज को। जब वो चुनने का वक्त आता है तब हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी कॉशन नहीं करते हैं। जिसने कुछ पैसे दे दिए, रुपए दे दिए, कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया, उसको वोट दे देते हैं और फिर उसके बाद भुगतते रहते हैं 5 साल, जिसमें कि सारा इंतजामिया, जैसा मैंने अभी कहा, जहाँ पैसा चलता है, जहाँ असर रसूख चलता है, ऐसा एक कौम बन जाता है। तो सबसे पहला जगह जहाँ हम सफाई लाएं, वो मैं कहूँगा इलेक्शंस में लाएं। क्योंकि ले में इंतजामिया ने मुझे एक वो लिखा था कि आप कैसे वोटर एजुकेशन करें, उस पर मदद करें। वोटर्स का एजुकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। स्कूलों में बच्चे तालीम याफ्ता बनते हैं, मगर बाहर दुनिया में जो वोटर हैं, यानी कि सारे शहरी, उनका इल्म याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। वो इल्म है कि जो सबसे मुनासिब हो, जो सबसे काबिल हो, उसे हम आगे ले जाएं, उसे हम चुनें, ना कि वो जो हमें 500 रुपये दे देता है, 1000 रुपये दे देता है, या हमारे चाचा के कोई दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, उसको हम वोट देंगे। यहीं पे सारा बिगड़ जाता है। क्योंकि जब इलेक्शंस में पैसे बंटने शुरू हो जाते हैं तो हम बहुत बार सोचते हैं पैसे मिल गए, अच्छा है, बहुत अच्छे लीडर हैं, इन्होंने हमें इतना पैसा दिया। मगर आपको नहीं पता है वो पैसे कहाँ से आते हैं जो आपको दिए जाते हैं। आपको पता है? शायद नहीं पता है, क्योंकि वो इतने अमीर भी नहीं होते हैं कि उनके घर में इतना बड़ा खजाना हो कि बांटते जाओ वोट मिलेगा। नहीं, वो पैसा लाते हैं ठेकेदारों से। वो लाते हैं इंडस्ट्री से। बड़े बड़े लेवल पे देखें, हिंदुस्तान के लेवल पे देखें तो इंडस्ट्री से, बिजनेस हाउसेस से, यहाँ मुकामी लेवल पे लाएं तो ठेकेदारों से। अब ठेकेदार क्यों दे? और दे तो वो कुछ हासिल करने के लिए देगा, तो वो उस वक्त तो उनको दे देंगे जो वो आपको दे देंगे। उसके बाद 5 साल वो हावी हो जाते हैं हर फैसले पर। तो आपके गांव में क्या बनेगा? स्कूल बनेगा या जिसकी किसी को जरूरत भी नहीं ऐसा कोई सड़क बनेगा? क्योंकि सड़क बनने पे फायदा किसी को होता है और स्कूल बनने पे किसी को नहीं होता है। सबसे नुकसान तो बच्चों को होता है। तो ये सारे फैसले अब पैसे पे चलते हैं, क्योंकि एक बार आप शिकार हुए इलेक्शन के वक्त पर, आपने उसको दिया जिसने आपको रुपए 500 या 1000 दिया। अब आप गुलाम बन गए, क्योंकि शराब हराम है या मुर्दाल जो मीट है उसको हाथ लगाओ। तो सबसे बड़ा हराम तो रिश्वत है, सबसे बड़ा हराम तो ये करप्शन है। तो जरूर पूछिएगा कि आपका कहीं ऐसा वास्ता तो नहीं रहा है चाचा जान या चाची जान या अब्बा जान। अगर ऐसा है तो हम आपके हाथ से भी नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर ये सिखाता है कि हराम से इतना दूर रहना है तो हम आपसे भी दूर रहेंगे, तब साफ होगा आपका। कुछ अरसे पहले मैं कारगिल के बहुत ही दिलचस्प शख्स से मिला था। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही ईमानदार। मैं तो लद्दाख में, लेह में कहते हैं जो एनलाइटेंड है, उस तरह का सा मुझे लगा। मैं यूं ही आपसे बांटूं। वो क्या, मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो बोले मैं तो कुली का काम करता हूँ, आपके लेह में आता हूँ, कुली की तरह मैंने काम किया है लोगों के घरों में, तो और कुछ नहीं किया है।
हाँ, मैंने बीच में एक बार ठेकेदारी भी करने की कोशिश की 2-4 साल, मगर मैंने उसे छोड़ दिया और मैं फिर दोबारा कुली बन के काम करने मैंने कहा आप ठेकेदार बने और फिर कुली का काम किया, क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो बोले मैं जब ठेकेदार था मुझे पैसे लेने थे इंतज़ामिया से, अफसरों से, और एक किसी इंजीनियर के घर पे लाइन में लगना पड़ा अपना पैसा लेने के लिए, और वहाँ पर उनको रिश्वतें दी जा रही थी। और उसमें, बुरा ना मानिएगा, उसमें 2 शेख भी थे जो ठेकेदार बने हुए थे, रिश्वत लेके आए थे। तो ये देखकर मेरा दिल पिघल गया, तौबा तौबा, हमारे शेख को भी ऐसे गलत कामों में पढ़ना पड़ रहा है। मैं इससे आज से तौबा करता हूँ। वो फिर दोबारा कुली बन गए। मगर इसी की बात मैं आपको ये बताऊं, उन्होंने ये भी बताया कुछ सालों के बाद वो जो 2 शेख थे वो उन्होंने भी ठेकेदारी पूरी तरह से छोड़ दिया। इस पर जरूर ताली हो। गलती कर बैठे, मगर हमें अगर रोशनी दिख जाती है तो वही इल्म है। तो ऐसा अगर हालत हो जहां पर हमारे आलिम भी मजबूर हों, और मजबूर क्यों हैं आपको पता है? क्योंकि उससे पहले के जो जनरेशन है उन्होंने ये निज़ाम बनाया जहां पर पैसे से ही आपके पुल बनते हैं, पैसे से ही आपके सड़क बनते हैं, जिसके वजह से एक सीधा साधा इंसान तो छोड़िए, आलिम भी ऐसे मजबूर हालत में पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ का तो मैं बात भी नहीं करूंगा कि ये कहानी मैंने ना उनसे पूछी ना हिम्मत की कि वो जो पुल बनाए थे उसका क्या हुआ, जिसके गिरने से शायद पता नहीं कौन कितने मर गए हों। जो बिल्डिंग बनाया था वो जो गिर के बच्चों को स्कूल में लेके भस्म हुआ, उसका क्या हुआ।